I assure you that after watching this particular video, you will not goof up at all in the topic of tones of the reading comprehension section of any law entrance exam, be it be CLAT, ALIT, or SLAT, or any other entrance exam, right? If tones is coming. क्योंकि आज this video is going to be a power pack of 70 tones, right? Yes, you heard it right. 70 tones. मतलब सब टोन्स कवर हो जाएंगी. कोई भी कोचिंग इतनी टोन्स को कवर नहीं करता. और इसको करने के बाद तो गारंटी इससे बाहर तो और कोई टोन्स आने वाली है नहीं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डू. तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ. वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक टोन्स. ठीक है. एंड अगेन मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आई थिंक आई फॉरगॉट द इंट्रोडक्शन. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup, that is the BS Entrance Exam by our coach Bakul Hanspal. So अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर अब तक आपने चीजें चेकआउट नहीं करी है चैनल में, तो I would actually exhort you to check those things out because this particular channel is catering to the CLAT exam as well as other law entrance exams. तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें डिलीवर करते हैं बच्चों को so that बच्चे they are able to crack their exams properly, right? And without any fear of their teachers जो कोचिंग में होता है and the toxic environment and all, right? So आज जैसे हमारा टॉपिक टोन्स का है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेजेड टॉपिक. मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि और कोई कोचिंग एटलीस्ट टोन्स के साथ उसके सिनोनिम्स नहीं करवाता, तो मैं सिनोनिम्स भी करवाने वाली है. सिनोनिम्स आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, antonyms are opposite meaning words, right? So all those things we are going to do in this very video so that अगर कोई टोन्स आए उस पर्टिकुलर टोन में, अगर उसका सिनोनिम पूछ लिया जाए तो you're able to answer it in a better way, right? And you're not confused at all. So you're going to see that a lot many tones would be repeated because we're going to discuss the synonyms also at the same time. Fine. Okay, after the discussion, this particular PDF would be uploaded on the Telegram channel. So if you haven't checked out the Telegram channel, I would highly suggest you to do that as well. It is there. YouTube पर ही everything is attached. Even on my Instagram page, everything is attached. There's an official Telegram channel as well as there is a doubt solving session, a very group which is there on Telegram. There's a personalized doubt solving group as well as an official Telegram channel. उसको जाकर भी check out कर लेना. So the very first tone is analytical tone. अब आप देखोगे you would say analytical tone क्या होती है? It's simply to analyze things, right? When you're analyzing things, that is analytical tone. When you are taking both positives and negatives, that is considered as an analytical tone, right? So जैसे हम बोले इसके synonyms हो गए rational, logical, critical, systematic. Now you're going to say, ma'am, that critical तो होता है कि ज्यादा negative sense में चीजें आ जाती है. Absolutely. लॉजिकल, रैशनल, सिस्टमैटिक ये वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली एनालिटिकल का मीनिंग निकालते हैं. लेकिन जब मैं बात करूं ना क्रिटिकल, तो क्रिटिकल इज समथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड एनालिटिकल. जब मैं बोलती हूँ कि आई एम एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी, आई एम एनालाइजिंग इट इन टोटो, दैट इज आई एम एनालाइजिंग द पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स ऑफ इट, राइट? तो जब मैं बहुत ज्यादा ही नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर दूंगी, बहुत ही चीजों को हेविली क्रिटिसाइज करने लगूंगी, दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल टोन. फाइन. To be very precise, that is critical tone. Otherwise, analytical includes critical tone. एक particular passage है जहाँ पे बहुत positives, negatives के बारे में बात करी जा रही है, वहां पर analytical लिखोगे. Let's study how the author's examples strengthen the main argument. So, how are they strengthening the main argument? You're analyzing the thing, therefore it is considered as an analytical tone. द फर्स्ट वन इज ओवर. अब एक चीज देखोगे एग्जाम में, जब आपको ऑप्शन आएगा कि आपको ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कोई पर्टिकुलर टोन पूछेंगे वो मैसेज से, तो ऑफकोर्स ऐसा होता है कि दो ऑप्शन तो 101% एलिमिनेट हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं रहती. हो सकता है लास्ट के दो ऑप्शन में या फिर फर्स्ट या फिर लास्ट ऑप्शन में दिक्कत रहे, कंफ्यूजन रहे, कंफ्यूजिंग हो. मेजरली देखा जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स में, ये बहुत चीज देखी जाती है कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं, टोन्स वगैरह, दो पहले के दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद अगर कोई टोन्स का क्वेश्चन आए तो बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होती है. तो वो जायज भी है क्योंकि आपको क्लैट का एग्जाम देना है, तो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें करवाई जाए. कभी कभार वो चीजें इतनी डिफिकल्ट होती है कि उसका सेंस नहीं बन रहा होता है एट ऑल, उसको जस्ट क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जाता है, राइट? बट आप देखोगे कि क्लैट के एग्जाम में यूजुअली ऐसे टोन्स पूछी गई हैं जो बहुत डुएबल थी, जो कंफ्यूजिंग इतनी नहीं थी. सो क्वेश्चन देखो, एक फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको आई बटन पे डाल दिया, उसको देख लीजिएगा. स्कोरिंग है ये, क्योंकि इससे मार्क्स नहीं कटने चाहिए. इन द सेम वे टोन्स का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, इससे भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए क्योंकि बहुत ईजी होता है. आज का सेशन पूरा अटेंड कर लोगे आप, इवन एक बिगिनर हो, है ना, आपको कुछ नहीं पता टोन्स के बारे में, आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो, ये वीडियो भी आपके लिए. एक पैसेज होता है जहां से टोन्स छाटनी होती है, आपको बताना होता है ऑथर का मूड क्या है. टोन्स आर व्हाट,
मूड ऑफ द ऑथर, राइट? तो वो जो अंडरनीथ वो जो बिलीफ होता है पैसेज के अंदर, दैट इज नोन एज अ टोन, राइट? सो ये आपको चीज करनी पड़ती है, दैट इज द थिंग इन टोन्स, एंड दैट्स वेरी इजी। कभी कभी ऑप्शंस उसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं, बट आई अश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वो नहीं होगा दिक्कत। असर्टिव, असर्टिव इज समथिंग विच इज एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है I am affirming something. I am saying this with conviction. Okay, I'm very confident about it. तो उसमें determined, decisive, forceful और confident आ जाता है। Forceful का मतलब आप इससे समझोगे कि यार forceful मतलब किसी के साथ कोई जबरदस्ती करी जा रही है। So always remember यहाँ पर जो synonyms है ना, कुछ synonyms तो entirely meaning match होता है, जैसे confident, decisive and determined, but कुछ है forceful जिनका partially match कर रहा है, जैसे critical, right? और analytical का सीन हमें देखा था। We need to take immediate action to solve this issue. This means we are determined about it. We are 100% sure about it. We are confident about it. Therefore, this is considered as an assertive tone. Now, ये informative tone. अब आप देखोगे आगे चलकर हम एक factual tone भी पढ़ेंगे जो इसी slide में है, PPT में। तो factual informative means the same. Educational tone है यहाँ पर। अब हम एक academic और एक scholarly tone भी पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, instructive है। अभी हम didactic tone भी पढ़ेंगे आगे जाकर। Enlightening है। तो अगेन जो फैक्चुअल है इसका मीनिंग ज्यादा मैच कर रहा है इन्फॉर्मेटिव के साथ। अब रिमेंबर करना ये तो भाई चीज सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है? व्हेन वी से इन्फॉर्मेटिव तो भाई ये फैक्ट्स और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करे, सो दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। रिपोर्ट एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू लॉ विल इफेक्ट द कस्टमर्स, consumers. So in that case, what it is going to tell, it is going to tell you about the information, it is going to tell you about the facts. अगर हम ऐसा हो रहा होता कि कोई रिपोर्ट होती जो एनालाइज कर रही होती चीजों को, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, तो इन दैट केस आप उसको एनालिटिकल टोन बोल देते। अगर बेरली इंफॉर्मेशन दे रही है, वो बस एक इंफॉर्मेटिव टोन है। यही इंफॉर्मेटिव टोन, नैरेटिव टोन, डिस्क्रिप्टिव टोन, एक्सपोजिटरी टोन, एक्सप्लोरेटरी, नॉट एक्सप्लेनेटरी बट यस एक्सप्लेनेटरी टोन, इन सबसे इनका सिमिलैरिटी इनमें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन डिफरेंस भी इनमें काफी होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। Objective tone. Okay, this is objective tone, which is again an unbiased tone, which is very neutral, completely facts पे base होता है rather than emotions. इसको भी कभी कभार हम factual बोल देते हैं, बट ऐसा मत समझना कि यार पैसेज आ गया, पैसेज में उन्होंने ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल दोनों दे दिए, इतना नहीं करेंगे वो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टोन्स में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि आप नहीं कर सकते आइडेंटिफाई कि वो ऑब्जेक्टिव लिखूं उसमें या उसे फैक्चुअल लिखूं। मॉक से एग्जाम्पल बोल रही हूँ, बहुत रिपीटेड एक्सप्लेनेटरी एक्सपोजिटरी पूछा जाता है, उनमें डिफरेंस वो दो आपको उठाकर दे देंगे, बच्चा वुड बी कंफ्यूज। कभी कभार वो चीजें इरेलीवेंट होती है जो दी जाती है, कभी कभार जेन्युइनली सेंस बना रही होती है, और इतना आपको एग्जाम में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा एटलीस्ट। ठीक है, वो खुद आपको सोच समझ के देते हैं, एटलीस्ट आज तक तो ऐसा नहीं दिया। So objective में according to the data, unemployment has decreased this year. This is completely a fact that you have stated. This could be a factual as well as an objective because it's completely straightforward. It's completely neutral. I have not given out my own opinion in this. Next is persuasive. Persuasive होता है कि किसी को थोड़ा सा convince करना कि ये चीज को कर लो। I'm persuading somebody to do this. जैसे every vote matters, your voice can bring real change. So मैं किसी issue के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ तो मेरे को वोट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट एटलीस्ट थोड़ा कंपेल तो हो काम करने में। तो कन्विंसिंग समबडी, आई एम परसुएडिंग समबडी टू गिव कास्ट देयर वोट। दिस कुड बी मोटिवेटिंग, इट कुड बी कंपेलिंग, इन्फ्लुएंशियल एज वेल एज कन्विंसिंग। रिमेंबर द सिनोनिम्स। अब मैं ये नहीं बोली सिनोनिम्स को रटो, देखो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी जो आप करते आए हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मोमेंट पर ये नहीं सुधर सकती अगर आप आज वोकैबुलरी करने बैठो, बिकॉज नॉट मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। Just remember, see these words of tones, that very simple words, you must be knowing their meanings, I'm damn sure. Just make sure कि अगर इससे कोई मिलता जुलता वर्ड आए तो एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि सिनोनिम से बहुत सिंपल है। ऐसा कोई वर्ड नहीं सिनोनिम में जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में। नॉर्मल डेली इंग्लिश रोजमर्रा की भाषा दैट वी यूज, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिनोनिम्स इन दिस। सो इट्स दैट कि अगर कोई सिनोनिम भी आए, नॉट द मेन टोन ऑफ परसुएसिव, बट इफ लेट्स सपोज दे हैव गिवन कन्विंसिंग rather than persuasive, you're able to identify it, right? So you know the synonyms as well as the main tone. So in that case, we are covering more than 70 tones if you see that way. Fine. Reflective tone. Now, reflective could also be an introspective tone. But देखो reflective में I am thinking about my past experiences, my past actions. ठीक है, looking back, I understand why those choices mattered. Right. So it's basically
आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट समबडी, अबाउट समथिंग, कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैंने जो डिसीजन 5 साल पहले करा था इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है. सो दिस इज आई एम रिफ्लेक्टिंग बैक into the past. This is a part of reflective tone, remember, or introspective tone. It could be a part of contemplative tone as well. Again, partially contemplative होता है just thinking. It's a synonym of thinking. मैं कुछ चीज सोच रही हूँ. That is not equivalent to reflective. So it could be a part of reflective again, but it is not completely reflective at all. Okay, meditative in some aspect, again, in a very small aspect, when I'm meditating, I'm reflecting something back into the past. Reflective tone is basically reflecting back into the past. So introspective actually 100% matches its meaning with that of reflective. Thoughtful is again a part of it. Now nostalgia बोलोगे, आगे पढ़ेंगे इसी पीपीटी में. Nostalgic is जब आप थोड़ा सा दुख का एलिमेंट होता है उस रिफ्लेक्शन में, that is known as nostalgic. ठीक है. अब आते सब्जेक्टिव टोन. हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ी थी, फैक्चुअल पढ़ी थी, विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. डेटा देखा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरा है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है. अब यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन डाल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर मान लो उस गिरा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट की जो नई वाली योजना थी उसने बहुत बेनिफिट करा होगा, या फिर बोलोगे 2014 के बाद की जो न्यू योजना आई है उससे ज्यादा बेनिफिट करा है. दिस इज व्हाट करा होगा. तो इट्स जस्ट माई ओन ओपिनियन. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कहने को कि अनएम्प्लॉयमेंट घटा है. क्यों? क्योंकि मैं ये भी बोल सकती थी कि मान लो एजुकेशन अच्छी हुई है, लोगों को एजुकेशन मिला है, रादर देन मैं सिर्फ गवर्नमेंट के स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ उनको प्रेज कर रही हूँ. तो आई डोंट नो अबाउट इट, जस्ट अ रैंडम गेस, इट्स माय ओन ओपिनियन. therefore it is known as subjective tone. It is emotional, it is again biased, it is individual based, it is personal. In my view, this story is the most powerful one in the book. So this is in my view, in my opinion. Remember this: individual, personal, very less chances of these words coming. Subjective could come, not a very important role though. Whimsical. Whimsical means it is imaginative. It's fanciful in a light-hearted way. Quirky. Quirky is something which is very, I would say, which is a little bit deviated from the mainstream. Okay, which is playful, it is imaginative. Like the cat wore a tiny crown and ruled over the kitchen kingdom. कैट ऐसा कभी नहीं कर सकती. इट्स वी हैव पर्सोनिफाइड द कैट. हमने कुछ इमेजिनेटिव चीज, कुछ फिक्शनल चीज खड़ी कर रखी है. दैट इज नोन एज अ विम्सिकल टोन. ठीक है. पैसेज में आएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा कि विम्सिकल टोन है. जस्ट रिमेंबर द सिनोनिम्स ऑफ विम्सिकल एज वेल. प्लेफुल, quirky, imaginative, fanciful. It's a kind of a different tone, remember. Okay. Elegiac. So, this particular tone is basically about sorrow or sadness. Elegiac is basically about that, where it particularly deals with loss. So, melancholic tone, mournful tone, sorrowful, lamenting, all these are examples. Especially ये जो words है lamenting and melancholic and mournful. इनको आप बिल्कुल याद रख लीजिए. ये तो basic synonym words हैं. They're very, very important. Elegiac in itself is not a very, very, I would say, important word or important tone to remember. तो क्योंकि ये वर्ड नहीं देखा गया है सच पूछते हुए. लिमेंटिंग, मेलनकॉलिक जरूर पूछा गया है. ठीक है. एंड इवन मोर्नफुल भी पूछा गया है. बट जस्ट रिमेंबर द वर्ड एलिजैक एज वेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट helping you to learn a new word which can come anyway in the passage. He spoke softly of the days that would never return. This is a kind of a lost sadness. Indignant. Indignant is showing anger over unfair treatment or injustice. So if you have been treated unfairly and you're angry about it, that is when indignant tone is used. How can you punish the innocent and let the guilty go scot-free or go free? This is an example of indignant tone because यहाँ पर injustice cause हुआ है. It could be offended, it could be outraged, angry, resentful, etc. सब गुस्से के synonyms हैं, बुरा मानने के synonyms हैं. So in that way, indignant could be used. But again, these synonyms completely do not cover the meaning of the word indignant in a better way. Therefore, just remember the word indignant and you know the meaning of indignant now. Inquisitive. Inquisitive is when you're curious to learn about new things. So curious, questioning, inquiring, investigative. So कोई passage है, an author says, I want to research more on it. I want to know more about it. I hope that somebody tells me more about it on this particular topic. This is going to be a part of inquisitive tone. Why does the sun set later in the summer? Because the author is eager to know, therefore it is known as inquisitive tone.
Tentative tone. Tentative is when you are uncertain about it, when you are dubious about it. This is known as tentative tone. I think we could try this method, but I'm not sure if it is going to work or not. Now remember, tentative tone when we have already said hesitant, uncertain, cautious, unsure are considered as synonyms of tentative tone. But apart from that, we're also going to learn about dubious. एक और tone आने वाली है आगे. Skeptical is also one of the tones which mean the same. Tentative, skeptical, dubious, all of them mean the same. When you're uncertain about it, well, let's suppose when author is uncertain about something, कि ऐसी चीज क्यों हो रही है ना, अर्थ ज्यादा अब फास्ट क्यों रोटेट करना चालू कर रही है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, तो ऑथर इज अनसर्टन अबाउट इट, ऑथर वांट्स टू नो मोर अबाउट इट. इट कुड बी अगेन ईगर ऑल्सो. एक पर्टिकुलर पैसेज में दो टोन्स भी हो सकती हैं. अगर ऐसा है तो आपको देखना है कि वो एक कौन सी टोन ओवर शेडो कर रही है दूसरी वाली टोन को. तो जो टोन ओवर शेडो कर रही हो दूसरी वाली टोन को, आपको वही आंसर मार्क करना है जो टोन बड़ी वाली होगी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मेजरली होता है कि कुछ टोन्स ऐसे होती है जो कंक्लूजन उसमें, जो जैसे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर पैसेज है, उस पर्टिकुलर पैसेज में एक बॉडी है. ठीक है, आपने मेन मेन चीज बता दी पैसेज के बारे में, और एंड में आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो. ठीक है. अब क्या होता है, ऐसा चीज देखा गया है कि बॉडी में तो आपने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी एक्सप्लेन कर दी, तो आपने फैक्चुअल उसको कर दिया, बिकॉज आपने जस्ट फैक्ट्स ले डाउन कर दिए उस पर्टिकुलर पॉलिसी के. ठीक है. अब कंक्लूजन पार्ट में क्या करा, कुछ चीजों को पर ना आपको डाउट था, तो आपने क्या बोला कि भाई अगर ऑथर को इस पर्टिकुलर चीज में डाउट है, तो फिर तो वो टेंटेटिव टोन होनी चाहिए, है ना. फिर तो वो स्केप्टिकल टोन होनी चाहिए इन दैट केस. ठीक है. तो आप इसमें क्या टिक करोगे, हो सकता है कि डाउट ना हो, बट ऐसा भी हो कि ऑथर कुछ स्पेक्यूलेट कर रहा हो फर्दर कि आगे क्या होगा, या फिर हो सकता है कि डाउट ना हो बट ऑथर बहुत ईगर हो कि इसमें पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो बहुत इंक्विजिटिव हो. तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा. आई ऑलवेज एम्फसाइज ओवर क्वेश्चन स्टेम व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग आरसी एंड सीआर क्वेश्चंस. क्या पूछा गया है, पैसेज का ओवरऑल टोन पूछा गया है, या फिर किसी एक लाइन को उठाकर टोन पूछा गया है, या फिर सिर्फ कंक्लूजन से टोन पूछे. व्हाट इज द टोन रिफ्लेक्टेड इन द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन द व्हेन द ऑथर सेज आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस. तो यहाँ पर सिर्फ इंक्विजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर फैक्चुअल नहीं होगा. और यहाँ पर अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पैसेज का टोन कैसा है. ठीक है. बट मेजरली वो आपको कंफ्यूजिंग नहीं देंगे. फ्लैट का अब तक देखे आए हैं हम, तो उन्होंने बिल्कुल भी घटिया तो नहीं पूछा है टोन से रिलेटेड, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इनफैक्ट ये तो 70 पेजेस की बहुत ज्यादा बड़ी पीपीटी है, बट इससे ऊपर तो आपको बिल्कुल भी पूछ लेने वाला एग्जाम. बट अगर इससे कम भी करोगे तब भी चल जाएगा, राइट. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ऑल द टोन्स so that you don't lag behind during your mocks, because mocks also play a very important role in building up your confidence. Fine. तो आपको देखना होगा कि कौन सा जो टोन है वो ओवर शेडो करे. अगर आपको लग रहा है कि जो मेन कंक्लूजन मेन बात बता रहा है पैसेज की, तो आप क्या करो, आप सिर्फ टेंटेटिव या स्केप्टिकल वाली करो. तो आपको लगता है कि यार कंक्लूजन इनसिग्निफिकेंट है, कुछ नहीं बोल रखा कंक्लूजन में कंक्लूजन में ये बोल रखा है देयर फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज अ गुड पॉलिसी, तो यहाँ पर आप सिर्फ फैक्चुअल टिक कर दो. ठीक है. अगर कंक्लूजन में कोई सब्सटैंशियल बात बोली नहीं है, अगर बोल रखी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलो. Solemn. Solemn is when you're serious, sincere, and respectful. Okay, that is known as solemn tone. We bowed our heads for a minute of silence. This is solemn, not important at all. Earnest, dignified, grave, serious. Provocative. When you're provoking somebody, when you're poking somebody, that is known as provocative tone. What if freedom is just another kind of control? Again, मैं यहाँ पर लोगों को ये क्वेश्चन बोलकर ताना दे रही हूँ लोगों को कि जो फ्रीडम मिली है हो सकता है वो अदर काइंड ऑफ कंट्रोल हो. आई एम प्रोवोकिंग पीपल टू हैव अ डिबेट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद मी. अदरवाइज पैसेज से समझ में आ जाएगा. लाइक लेट्स सपोज किसी एक्सट्रीमिस्ट ने पैसेज लिखा है और वो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज पर, राइट, और बोल रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, और अगर मान लो कि एक दिन ऐसा हो जाए कि मेरी कम्युनिटी का राज हो जाए, राइट, या फिर वाइसा वर्सा कि सिर्फ मेरे ही सिटी के लोगों का राज हो जाए पूरी कंट्री पर, है ना, या फिर ऐसा हो, या फिर कुछ और चीज हो. यू आर प्रोवोकिंग द गवर्नमेंट, राइट, यू आर प्रोवोकिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोवोकेटिव टोन. ऐसे कोई पैसेज नहीं आएंगे कि कोई एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को बोल रहा है. This would be like too much, which is not healthy at all.
लिरिकल, लिरिकल होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पोएटिक, इमोशनल, एक्सप्रेसिव, मेलोडियस। हो सकता है ना पैसेज में भी फ्यू लाइंस ऑफ पोएट्री आपको दे जाए, तो आप उसमें लिरिकल लिखोगे, बिकॉज लिरिक्स वन द विंड हम सॉफ्टली कैरिंग विस्पर्स ऑफ द सी। सो व्हाट इज दिस, आप इस चीज में क्या बोल रहे हो, आप बहुत ही पोएटिक वाली चीजें में बात कर रहे हो कि यार विंड चल रही थी और ऐसे लग रहा था वो सी के विस्पर्स आ रही थी। इट्स काइंड ऑफ पोएटिक थिंग। मेलोडियस इज अगेन विच इज वेरी स्वीट टू लिसन, एक्सप्रेसिव, इमोशनल एंड पोएटिक। इमोशनल भी बहुत हो गया फॉर द वर्ड लिरिकल, ठीक है, विच इज इतना नहीं बनता सेंस इसका। एक्सप्रेसिव भी बहुत ज्यादा हो गया, इट्स नॉट ऑलवेज की सिनोनिम्स बिल्कुल मैच करें, है ना, आपको डेविएशन और एवरेशन दिख सकता है, बट मेलोडियस एंड पोएटिक फॉर श्योर श्योर दे आर मैचिंग विद लिरिकल। Incisive. Incisive is when it's clear, sharp. Take a direct in thinking. It could be analytical, penetrating, keen, sharp. Right. This is incisive. Her comment exposed the real issue everyone had ignored. कोई चीज है ना बिल्कुल प्रिसाइज टिक कर रही है, वो हो जाएगा इंसाइसिव। जैसे कि पर्टिकुलर पॉलिसी है जो बहुत फ्लॉलेस है, और उस फ्लॉलेस पॉलिसी में क्या ऑथर उसको उसके ऐसे ऐसे निटी ग्रिटीज को निकाल कर एनालाइज कर रहा है कि लगे कि ओ माय गॉड, कि ये जो पॉलिसी दिखने में जो अच्छी लग रही थी एक्चुअली में अच्छी है नहीं, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने छुपाई है, या पॉलिसी ड्राफ्ट जिसने करी उसने छुपाई है चीजें, तो बोलोगे यार बिल्कुल ऑन पॉइंट बंदा है, बिल्कुल शार्प बंदा है, देयरफॉर इंसाइसिव टोन हो जाएगा उस पर्टिकुलर। हाउएवर आप बोलोगे उसमें एक्सपोजिटरी का भी एलिमेंट हो सकता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। इम्पार्शियल, अब इम्पार्शियल में आप देखोगे विच इज अगेन वेरी फेयर, न्यूट्रल। आप इसको ऑब्जेक्टिव के साथ भी लिंक कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव इम्पार्शियल बोथ ऑफ देम मीन द सेम। अगेन कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। इस मान लो कोई पर्टिकुलर पैसेज है जो बात कर रहा है इस पर, द रेफरेंस श्योर दैट बोथ द टीम्स फॉलोड द सेम रूल्स। ठीक है, कोई पैसेज है इस पर्टिकुलर चीज पर है कि मान लो आफ्टर इयर्स ऑफ इनजस्टिस एक पर्टिकुलर सिटी में हुआ था, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ था, और इनजस्टिस से लड़ने के बाद क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नेपोटिज्म था और सिर्फ वो नेपो किड्स को ही सारी सारी अपॉर्चुनिटीज देते थे। जब भी कोई कॉम्पिटिशन होते थे नेपो किड्स या फिर नॉर्मल कॉमन मासेस में, तो हमेशा नेपो किड्स को जिताते थे। बट फाइनली आफ्टर रेवोल्यूशन स्ट्रगल वगैरह थोड़ा थोड़ा जो शुरुआत में लिखा हुआ पैसेज में, फाइनली अब सारी चीजें इम्पार्शियल तरीके से होने लगी, है ना, अब सब कुछ होने लगा इम्पार्शियल, तो वहां पर इम्पार्शियल वाली टोन आ जाएगी। Euphoric. Euphoric is very excited, happy, right? Ecstatic, elated, overjoyed, joyful, very happy is euphoric. She couldn't stop smiling after hearing the good news. बहुत खुशी. This is euphoric. Disdainful, showing dislike or disrespect towards somebody. Arrogant, contemptuous, right? Contemptuous, disrespectful, scornful. He gave a cold look at the messy work on the table. Right? बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो किसी को, दैट इज डिस्डेनफुल। राइट, आप इनफैक्ट जब इसमें ये वाला एलिमेंट आ जाता है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो इन दैट केस उसमें आप बी लिटलिंग, डिस्पराजिंग, पेट्रनाइजिंग ये भी वर्ड्स ऐड कर देते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, डिस्डेनफुल, किसी को अपने से नीचा समझ रहे हो, पेट्रनाइजिंग, ठीक है, या फिर डिस्पैरेजिंग। डिप्लोमेटिक, जब आप चीजें जो आपको बुरी लगी है मुंह पर, आप उसको रिप्लाई इसका ऐसे दे रहे हो कि दूसरे बंदे को भी बुरा ना लगे, या फिर पूरी चीज एक हॉट आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए, बस एक नॉर्मल सी चीज रहे, दैट इज डिप्लोमेटिक। कि उसने शी डिसएग्रीड पोलाइटली विदाउट हर्टिंग एनीबॉडीज फीलिंग्स, कंसिडरेट, टैक्टफुल, पोलाइट एंड कर्टियस, ये सबके इसके एग्जांपल्स डिप्लोमेटिक। आप चीजों को संभाल रहे हो, राइट, आप उसके आप बिल्कुल मुंह पर नहीं बोल रहे हो उस चीज को, फ्रैंक नहीं बन रहे, दैट इज डिप्लोमेटिक। कंसिलेटरी, ओके ओके, तो रिमेनिंग टोन्स को हम फिर दूसरी क्लास में करते हैं। वीडियो एक्सटेंड हो रही है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इसलिए हो रही है, बने रहना दूसरी वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड कीप प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो भी जल्दी आ जाएगी।